बैक विथ वन मोर सेट। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 31 आपको पूछा गया है, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 450 एंड 810 completely? So whenever you get words like greatest, highest, largest, this type, find the highest common factor. So let's see how it is. See, the word greatest मतलब highest common factor निकालना है. Now to find the highest common factor, you have two methods. I will discuss the both. Method number 1 to find the highest common factor and method number 2 to find the highest common factor. Let's see the first method. First method is by इस तरह से 450 हमने लिख दिया, फैक्टराइज करके करना है. We have to just factorize this. So let us factorize this. So I can use the 5 table. 5 ones are 5, 9s are 45, 0s are 0. 5 ones are 5, so 3 is remainder, 5 6s are 30, छोटा हो गया है ना ये. 5 6s are 30 and 5 2s are 10. Okay. So next I can go with which? So 9 0 1 6 2. You can use 2 table. 2 ones are 2. Okay, 2 4s are 8 and 2 5s are 10. एक मिनट, हाँ, 2 5s are 10. 2 8s are 16 sir, 2 1s are 2. Next again. So now 45 and 81. By which number are you going to cut it? Sir, 9 table. 4 plus 5 is 9, 8 plus 1 is 9. I can cancel by 9 table. Or else you can use 3 table also. I'll go with 9 table. So 9 was a 9, 5 are 45, 9 9s are 81. After this step, in 5 and 9, nothing is common sir. Nothing is common, stop it. So highest common factor is nothing but 5 2s are 10, 10 9s are 90, HCF is, that is nothing but 90. Method number 2 कैसे करना है देखो यहाँ पे. Method number 2 is by division technique. Division कैसे करते हैं? Smaller number here and okay bigger number here. So let's divide 8 10 by 450. So 450 ones are 450 done. What is the remainder here? Sir 0, 11 minus 5 is nothing but 6 and आपने बोल दिया 8 minus 5 is 3. Take this divisor 450 this side. Sir 450 divided by 360. 360 ones are 360 done. What is the remainder sir here? 90. Take the previous divisor 360 again as a dividend. ठीक है, 360 इस side. 94s are 360. 360 minus 360 is 0. 90 is nothing but final highest common factor HCF. So this is the answer by method number 2. नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा गया है, ये इंडाइसिस के ऊपर है. y raised to 10 into y raised to 5 equals y raised to k into y raised to 2k. ओके, इंडाइसिस में आपको एक चीज याद रखनी है कि a raised to m into a raised to n is nothing but a raised to m plus n होता है. ठीक है, whenever multiplication add the powers. तो पावर्स को हम ऐड करके लिखेंगे. y raised to 10 plus 5 is 15 sir, and here y raised to k plus 2k is nothing but sir 3k. 3k equal to 15. Whenever bases are same, compare the powers. 3k is equal to 15. If 3k is equal to 15, what is the value of k? Sir, k value is 5. कैसे? 3 ones are 3, 3 5s are 15. Answer is 5. Option number C. Question number 33. देखो ये आप दो वे से कर सकते हो. पहले तो मैं एक बेसिक ले लेता हूँ. What is cube root of 125? ये कैसे फाइंड करते हैं? जनरल. Okay, we write this as, this can also be written as 125 raised to 1 upon 3. This can be written as 125 raised to 1 upon 3. So similarly, how this you will be writing 125, यहाँ पे है 2 और 3 है. This can be written as 125 square raised to 1 upon 3. Okay, if you not getting like that, you can just remember one formula directly. Formula क्या है? nth power, okay, nth root of a raised to m. Nth root of a raised to m, the formula is a raised to m divided by n. That is nothing but a raised to m. ठीक है, कितना आ जाएगा? ये मल्टीप्लाई करना है आपको. ठीक है, मल्टीप्लाई करके जब आप नेक्स्ट स्टेप में जाओगे इसमें, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा देखिए. तो ये हो जाएगा 125 2 इंटू 1/3 हो जाएगा, बिकॉज पावर्स गेट्स मल्टीप्लाइड. तो ये हो जाएगा सर 2/3. यू कैन क्लियरली सी व्हाट यू हैव रिटर्न. यहाँ पे हमने लिखा है, ठीक है, ये देखो 3 ये था आपका n, ये क्या था हमारा n था. तो n को कहाँ रखा? नीचे. और इसकी जो पावर थी ये क्या था सर? ये पावर बेसिकली m था. तो पावर को कहाँ पे रखा है? ऊपर. पावर और डिवाइडेड बाय अंडर रूट में क्या है सर? अंडर रूट, थर्ड रूट, क्यूब रूट. तो इसको लिख दिया नीचे. हाउ टू सॉल्व दिस थिंग? नेक्स्ट स्टेप 125 रेज टू 2/3. सर 125 कैन बी रिटर्न एज व्हाट? 5 क्यूब. और ऊपर क्या है सर? इट इज 2/3. वंस अगेन इंडाइसिस की आइडेंटिटी, पावर रेज टू पावर. क्या करते हैं हम इस केस में सर? वी जस्ट मल्टीप्लाई दिस 5 रेज टू 3 इंटू 2/3
3 and 3 gets cancelled. 5 का square, sir, answer is 25. Option number A. Question number 34. 1, 9, 25, 49, 81. This is basically square. 1, 9, 25, 49, 81 और question mark. देखो 1 is 1 का square, तो ये 3 का square है, 5 square, 9 square and finally 11 square. आपने लिख दिया 121, option D. A raised to 9 into A raised to 7, just multiply, multiplication is there, so add it, that is 9 plus 7, A raised to 16, option number C. Formula for perimeter of a square. देखो perimeter of a square बहुत important है, याद रखिए. What is perimeter? So outer length. What is outer length here? A plus A plus A plus A. The perimeter is nothing but outer length, and outer length is nothing but 4A in terms of square. So 4A. अगर वो रेक्टेंगल का क्वेश्चन होगा, रेक्टेंगल के केस में लेंथ ब्रेड्थ रहता है और यहाँ पे लेंथ अगेन ब्रेड्थ, तो रेक्टेंगल केस में पेरीमीटर हम बोलते हैं 2 टाइम्स ऑफ L प्लस B. 2L 2B, that is nothing but 2 times of L plus B. Okay, in the rectangle case, square case में 4A. Value of 0.1 into 0.3. So let's multiply this 0.01 into 0.03. From this we have to subtract 0.00, again one more 0 and 3. देखो 1 into 3 is 3, but here 2 decimals are 2 decimal places. Here 2 decimal places. 2 plus 2 is how much? 4. So answer में आएगा 4 decimal place. 1, 2, 3, 4, that is nothing but 0.003 minus 0.0003, that is nothing but 0 is the final answer. A train travels at the speed of 75 km/h. How much distance will it cover in 45 minutes? Simple. So distance equal to speed into. देखो 2 things you have to remember in distance equal to speed into time. One is when the distance you want in kilometers, speed को आप रखो किलोमीटर पर आवर में. Keep the speed in kilometer per hour and timing you keep it in hours. But when the distance you want in meters, remember speed आपको रखना है ये speed into, हाँ जरा सा सही से देखिए, speed into है, हाँ speed को रखना है मीटर पर सेकेंड में and timing को रखना है seconds में, right? So now we want in kilometers, so I will go with this. Okay, तो यहाँ पे देखिए स्पीड क्या है, स्पीड 75 किलोमीटर पर आवर, सब्स्टिट्यूट कर दिया. व्हाट इज टाइम सर? सर टाइम इज 45 मिनट, लेकिन मैंने क्या लिखा है सर, टाइम शुड बी इन आवर्स नाउ इन दिस केस. तो 45 मिनट्स को हम कन्वर्ट करते हैं आवर्स में. कैसे करेंगे? देखो 45 मिनट इज नथिंग बट 45 डिवाइड बाय 60 आवर्स. तो इसको लिख दिया हमने 45 डिवाइडेड बाय 60 आवर्स, किलोमीटर पर आवर, एंड दिस इज आवर्स. ठीक है, and answer will be getting in kilometer. You can see this side. So let's simplify this. 15 3s are 45, 15 4s are 60, sir. Let's multiply and then cancel by 4. 75 3s are, 7 3s are 21, 3 5s are 15, that is nothing but 225. Divide by 4 and answer for this question is 4 5s are 20, 2 बचा, 4 6s are 24, 1 बचेगा, 4 2s are 8, 4 5s are 20. That is 56.25. Option number D is the answer for the question. वैल्यू ऑफ साइन 30 डिग्री इज हाउ मच? डायरेक्टली याद रखिए 1/2 होता है इसका आंसर. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन? इसमें से स्मॉलेस्ट कौन सा है? देखो स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन निकालने के लिए बहुत सारे तरीके हैं, अलग अलग. नाउ दिस क्वेश्चन इज लिटिल बिट थोड़ा सा ऊपर हायर रेंज का है. देखो नॉर्मल क्वेश्चन रहेगा 1/2, 1/3, 1/4, तो क्रॉस मल्टीप्लाई टेक्निक एक यूज कर सकते हैं. नाउ इस केस में हमें थोड़ा सा समथिंग वी हैव टू डू डिफरेंटली बिकॉज द नंबर्स आर वेरी बिग. व्हाट आई विल डू हियर, ऑप्शन ए एंड ऑप्शन नंबर बी, I'll just make the bases same. I'll just compare first A and B, option A and option B. I'll make the bases same. See here in the option number B, if I just double it, okay, इसको कर देता हूँ मैं डबल, तो 128 का डबल क्या होगा सर? 128 डबल is 256. Let's double this numerator also. सर 31 डबल is 62. ऑप्शन नंबर A क्या है सर? 61 divided by 256. ऑप्शन नंबर B क्या है? 62 divided by 256. Which one is smaller in this? So obviously whenever the base is same, number in the numerator smaller कहाँ पे है सर? In the first. So this is the smaller. 61 by 256 is smaller than 256. This 62 by 256. So this option got eliminated. So ये हो गया smaller. Now let's see यहाँ से यहाँ पर. देखो let's compare now option A, that is 61 by 256 with 121, option number C. 121 divided by 512. Okay, who is smaller here now? What we'll do, just double it. Let us double it. Double करेंगे ना तो इसको ही हाफ कर दो. Choice is yours.
इसको डबल कर सकते हो, 256 का डबल कितना होता है सर? 256 का डबल होता है 512, और 61 का डबल कितना होता है सर? 61 का डबल 122 होता है। ऑप्शन सी आपका सेम ही रखो, 121/512। कंपेयर करो, देखो 512 बेसिस डिनोमिनेटर इज सेम बट द न्यूमरेटर सर छोटा किसका आ गया? 121 का छोटा आया है, ठीक है ना। तो यहाँ पर द फर्स्ट वन इज बिगर देन सेकेंड, तो 122/512 दैट इज ऑप्शन नंबर ए को कर देंगे कैंसिल, दिस इज स्मॉलर, ओके 121/512। नाउ व्हाट आई विल डू नेक्स्ट, 121/512 is there, right? So see here, now next let us compare this 121/512 and 60 divided by 255. Now the problem here, यहाँ पे प्रॉब्लम क्या होगा, देखो when you just make it half, ऑप्शन नंबर सी एंड ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन सी को हाफ करोगे तो यू विल बी गेटिंग 256, बट हियर इट इज 255। प्रॉब्लम हो रहा है यहाँ पे, है ना, यू आर नॉट गेटिंग सेम डिनोमिनेटर यू आर नॉट गेटिंग सेम। तो हम क्या कर सकते हैं, यू कैन यूज वन टेक्निक, एक टेक्निक आप यूज कर सकते हो। कैसी? एक तो टेक्निक है कि क्रॉस मल्टीप्लाई सीधा कर दो, ये इधर मल्टीप्लाई कर दो, ये इधर मल्टीप्लाई कर दो एंड चेक किसका आंसर छोटा आता है, दैट इज योर वन आंसर। सो लेट्स सी बाय दैट मेथड ऑल्सो, और एल्स यू कैन जस्ट मेक इट हाफ एंड अगेन चेक इट। देखो एक काम करते हैं, पहले तो हम हाफ करके चेक करते हैं कि फर्स्ट ऑप्शन नंबर सी को हम कर देते हैं हाफ, तो 512 का हाफ कितना होता है सर? 256 होता है। 121 का हाफ कितना होता है सर? 121 का हाफ होता है 60.5। बट द थिंग इज फ्रॉम हियर टू हियर अगेन वी आर नॉट गेटिंग एनीथिंग, आई मीन 255, 256, विच इज स्मॉलर? इट इज नाउ डिफिकल्ट टू से विच वन इज स्मॉलर इन दिस, इट इज क्वाइट डिफिकल्ट टू से इसमें से छोटा कौन सा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, बेटर क्रॉस मल्टीप्लाई पे जाएंगे, इस नंबर को और इस नंबर को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। सर 255 इंटू 121, लेट्स सी दिस, सर 255 इंटू 121 दैट इज नथिंग बट 255 प्लस 2 5 10, 2 5 10 प्लस 1 11 एंड 2 2 4 प्लस 1 5, ऐड किया अगेन 255 यहाँ पे आएगा, 255 आ गया। तो टोटल रिजल्ट आ रहा है 5 प्लस 1 6 6 2 8 एंड 5 5 10 एंड फाइनली 3। यहाँ पे जो रिजल्ट आ रहा है इसका ये आ रहा है 30855 व्हेन वी मल्टीप्लाई दिस। नाउ लेट्स मल्टीप्लाई 512 विद 60, 512 विद 60 को जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको रिजल्ट मिलेगा 0, तो पहले एज इट इज 6 2 जा सर 12, ठीक है, एंड 6 1 जा 6, 6 प्लस 1 7 एंड 6 5 जा सर 30, 30 व्हाट यू आर गेटिंग 30720। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हो, दिस इज ऑल्सो वन मोर टेक्निक, whenever you want to find the smallest fraction and biggest fraction, तो जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई दिस। देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ पे आंसर आ रहा है सर 30,855, बट हियर वी आर गेटिंग 30,720, विच इज स्मॉलर इन दिस, 30,800 इज स्मॉलर और 30,720? सर 30,720 इज स्मॉलर। ये स्मॉलर किस साइड आया है सर? ऑप्शन नंबर डी के साइड आया, तो ऑप्शन नंबर डी इज द स्मॉलर, ऑप्शन नंबर डी इज द स्मॉलर फ्रैक्शन इन दिस। आई होप आपको समझ में आया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 41, largest number that exactly divides 2048 and 960. You can go with method 1 and 2, whichever you like. Let's move with the, I mean I'll go with first method only, 2048 और आपने लिख दिया इधर 960. Okay, let's cancel with 5 टेबल, 5 से जाएगा नहीं, 5 से तो नहीं जा रहा है, लेकिन 2 + 4 6, 6 + 8 इज नथिंग बट 6 + 8 क्या हो जाएगा? 14 हो जाएगा। लेकिन अब प्रॉब्लम आपको आता है, देखो 2 से कट कर देंगे, फिर 2 1 जा 2, 0 जा 2, 2 जा 4, 4 जा 8, 2 4 जा 8, 8 जा 16, 0 जा 0। ओके, नाउ आई कैन गो विथ 4 टेबल। यस 4 से कट हो सकता था, लास्ट 2 डिजिट्स देखकर आप 4 से कट कर सकते थे। नाउ आई विल गो विथ 4 टेबल, 4 से कट करेंगे। 4 2 जा 8, 4 5 जा 20, 4 6 जा 24, 1 जा 2 जा 0 जा। अगेन आई विल गो विथ 4 टेबल, 4 1 जा 6 जा 24, 4 4 जा 16, 4 3 जा 12, 0 जा 0। अब क्या करेंगे, कौन सा 2 का टेबल फिर से आ जाएंगे, ठीक है, और किससे होता है ये, ठीक है, 2 के टेबल से, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 15 जा 30। फाइनली यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं है, स्टॉप कर दो, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आएगा, लार्जेस्ट वर्ड आया मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। सर 2 4 जा 8, 8 4 जा 32, 32 2 जा सर 64, सो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इज 64, ऑप्शन नंबर ए में है। 42, सम ऑफ एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज, देखो क्वाड मतलब 4 कोई भी, ठीक है, यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल आप स्क्वायर बनाओ, रेक्टेंगल बनाओ, कुछ भी बनाओ, तो यहाँ पे व्हेनेवर दिस टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज देयर, तो यहाँ पे सम होता है आपका 360 डिग्री। अगर ट्राइंगल होगा तो 180 डिग्री, आपको ध्यान में रखना है।
ओके 360 डिग्री। मोहन एज इज 1/3 ऑफ फादर्स एज। तो यहाँ पे कैसे इसको याद रखना है, देखो मोहन इज 1/3 ऑफ फादर्स एज, तो देखिए मोहन एज इज 1/3 ऑफ फादर्स एज। व्हाट यू डू, यू जस्ट राइट दिस इन द रेशियो फॉर्मेट। अगर मोहन 1 है तो फादर का एज होगा 3 रेशियो। सर ये कैसे आया, हाउ दिस केम, देखो मोहन मीन्स एम, इज का मीनिंग होता है इक्वल टू 1/3 ऑफ मतलब इनटू फादर एज क्या ले लो, एफ ले लो। तो मोहन इज इक्वल टू 1/3 इंटू एफ। तो एफ को एक साइड कर देंगे, इस साइड कर देंगे, ये क्या हो जाएगा m डिवाइडेड बाय एफ इज इक्वल टू 1/3। तो रेशियो ऑफ मोहन एंड फादर इज 1/3। सम ऑफ देयर एज इज 60 ईयर्स। सम इज इक्वल टू सर 60 ईयर्स। व्हाट इज सम हियर, वी आर गेटिंग इफ 1x and 3x, सर सम इज 4x। 4x is equal to sir 60, so x is equal to 4 15s are 60. So we have to find what is the age of Mohan. So Mohan is 1x, that is nothing but 15 years. That's the answer. If father is asked 3 into 15, that is 45. So Mohan is 15 years, option number B. 44. When a number is subtracted from its square, result is 20. देखो एक नंबर को when is number is subtracted from its square, स्टूडेंट क्या मिस्टेक करते हैं, मिस्टेक, what student do it wrong, mistake, नंबर मतलब x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 20 करते, दिस इज अ टोटल रॉन्ग। ठीक है, ये है टोटली गलत, मैंने यहीं पे लिख दिया दिस इज अ मिस्टेक। करेक्ट वे ऑफ डूइंग द क्वेश्चन, करेक्ट वे कैसे याद रखना है, देखो नंबर वी आर सब्ट्रैक्टिंग फ्रॉम व्हाट, फ्रॉम इट्स स्क्वायर। तो ये फ्रॉम इट्स स्क्वायर ये बड़ा है, तो पहले बड़े वाले को आपको लिखना है एक्स स्क्वायर, फ्रॉम दैट वी आर सब्ट्रैक्टिंग द नंबर, that is x square minus x, result is equal to 20. Now directly by using options also you can do 10 square 100, 100 minus 10 sir 90, no. 20 square 400 minus 20 is not 20 sir 5, suppose x is 5, 5 square 25 minus 5 is 20, option number 5. सर नहीं समझ में आया तो you can solve it again, डायरेक्ट नहीं समझ में आ रहा तो ऐसे करो x square minus x, 20 को ले लो इधर तो ये हो जाएगा -20 इक्वल टू 0। ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, आंसर विल बी पॉजिटिव वैल्यू। व्हेन यू सिंप्लीफाई, प्रोडक्ट मस्ट बी 20 एंड सम मस्ट बी -1, -1 आना चाहिए सम। ठीक है, 2 नंबर्स का सम इतना आना चाहिए और प्रोडक्ट मल्टीप्लाई कितना आना चाहिए 20। सर 4 5 20 होता है, डायरेक्टली बोलता हूँ मैं 4 5 20 एंड वी वांट बट द सम -1, कैसे आएगा सर, ये माइनस लगा दिया तो और ये प्लस, सर +4 and -5 is -1, also the product is -20 but change the sign at the last, यहाँ पे आ जाएगा +5, ये हो जाएगा -4, सर आंसर मस्ट बी पॉजिटिव, ऑप्शन नंबर सी। 45. What is the value of a plus b into a square minus ab plus b square? याद रखना है दिस इज द फॉर्मूला फॉर a क्यूब माइनस b क्यूब, सॉरी a क्यूब प्लस b क्यूब का फॉर्मूला है। तो क्योंकि आपको पता है a क्यूब प्लस b क्यूब इज नथिंग बट सर a प्लस b इंटू a square minus ab plus b square. तो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज a क्यूब प्लस b क्यूब। और एक चीज़ याद रखिए इसी के साथ साथ a क्यूब माइनस b क्यूब अगर होता था तो फर्स्ट वन ये नेगेटिव आता है a माइनस b एंड नेक्स्ट हियर इन दिस ब्रैकेट एवरीथिंग इज पॉजिटिव, a स्क्वायर प्लस ab plus b square, done. Okay, so here all the 15 questions are covered. Okay, so be prepared for your exams and all the best. Thank you.